Hello student, welcome to all. Today is our lecture on design of synchronous machine. So now in previous lecture we study about specific magnetic loading and specific electric loading, and we find out the equation for specific magnetic loading and specific electric loading. And this type of formula we used in DC machine and as well as also in our AC induction motor. So here we introduce some factors about the choice of specific magnetic loading. First one is an iron loss. In iron loss, there is a high VAV means what? The flux density, or we can say the specific magnetic loading VAV is high. There is a high flux density in each and core. So high iron losses and higher temperature rise, which means that iron losses increase and efficiency will decrease. So iron losses appear in the form of heat and hence core temperature increase, which may damage insulation properties. And this point we have to consider for that for the design, the low value of flux density we can choose. Now the second term is a transient short circuit current. In transient short circuit current, here we see that a high VAV, a low TPH, low leakage reactance, and high short circuit current. So briefly we study that if for low value of VAV, and means that low value of specific magnetic loading, there will be higher value of leakage reactance, and this will result in less value of current in short circuit situation. To avoid the higher value of short circuit current and damage due to this lower value of specific magnetic loading, we have to increase the value of high VAV, which means that low number of turns, and low number of turns, low leakage reactance, and high short circuit current produced. So we choose a value of VAV as a low. Now the next one, voltage rating. In high voltage machines, slot width required is more to accommodate thicker insulation, smaller tooth width, small allowable VAV. So here higher insulation is to be provided for higher voltage machine, as we know that. Hence float space required to higher, which is result in space for the teeth required is low. So result is that the excessive flux density in teeth will produce. So limit this value, we have to choose a higher value of flux density for voltage rating. For a low voltage machine, but high voltage machine we choose higher value of VAV, lower value of VAV for high voltage machine. The next one is the stability. As here we know that P maximum, which is equal to V by X, where V stands for terminal voltage, X stands for synchronous reactance, and here E, which is an excited voltage. So if excess in synchronous reactance, then under steady state condition the machine delivered or power P maximum, which is equal to VE by X. Now maximum power limit of the machine is inversely proportional to synchronous machine reactance, as we here see that. So if gap density is taken of higher value, then flux per pole is large. So lesser number of turns are required for the armature winding, and we know that our reactance is proportional to n square number of turns. So higher value of gap density is selected, then steady state stability limit is improved. So if we choose higher value of VAV, as our stability will be improved. Now the parallel operation. Now PS is equal to VE sin delta by X, which means that our synchronous power is equal to VE sin delta by X, where delta is a torque angle. So power supply in our alternator, for the parallel operation, it depends on the synchronous power, and higher is the capability of parallel running system of machine is to be synchronized if we choose higher synchronizing power. So
which is inversely proportional to Xc, which means that higher value of synchronous power, or by increasing the value of Xs. So if Xs increase, the power reduce, and power increase, which means that Xs reduce. So the reactance value, decreasing the reactance value, we get better parallel operation. So here are some specific magnetic loading factor are there. Now for the salient pole alternator and non-salient pole alternator, the plug density we choose between 0.54 to 0.65 Weber per meter square for non-salient pole alternator, and 0.52 to 0.65 Weber per meter square for salient pole alternator. Now we study about choice of specific electric loading. There are a number of factors that affect choice of specific electric loading: copper loss and temperature rise, operating voltage, synchronous reactance, and steady state losses. Now the copper loss and temperature rise, we know that higher value of AC result in more copper loss, and this result in poor efficiency. So more copper loss means more temperature rise. So we choose a cooling techniques for the heat dissipation in our for a high value of AC. This cooling coefficient is small for a high value of AC and high for the low value of AC, which means that if we choose higher value of AC, which means that higher copper loss, higher temperature rise, and we choose the value for a cooling is higher. Otherwise, the temperature rise will increasing, which means that the value of AC we choose lower. Now the next one is an operating voltage. The insulation and quality of insulation depends upon the voltage of the machine. If value of voltage increase, which means that insulation increase, and value of voltage decrease, the insulation value will decrease. And if we increase the value of insulation, which means that the space required for the insulation is higher, and so that space required for the conductor is reduced. So we choose lower value of AC in high voltage machine. Now next one is an synchronous reactance. The high value of AC result in high value of XC, and which lead the poor voltage regulation and low steady state ability limit. Now the another one is our stray load losses. If stray load losses are increased with increasing in AC, which means that specific electric loading is higher, the stray load losses will increase. If specific electric loading is lower, the stray load losses will decrease. Here is some guidelines regarding the way using value the specific electric loading. For non-salient pole alternator, it's 50,000 to 75,000 ampere per meter. For salient pole alternator is 20,000 to 40,000 ampere per meter. So now we study about design of salient pole machine. तो जिस तरह हमने जो इंडक्शन मोटर और डीसी मशीन के अंदर हमने डिफाइन किया था रोटर और स्टेटर की डिजाइन, उसी तरह से हम सेलियन पोल मशीन और नॉन सेलियन पोल मशीन जो है सिंक्रोनस मशीन, उसकी डिजाइन हम यहाँ पर करेंगे. उस जो डिजाइन डीसी मशीन और जो इंडक्शन मोटर के अंदर जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे, उस फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर अब डायरेक्टली लेने वाले हैं. तो पहले सेलियन पोल मशीन डिजाइन के अंदर जो है वो हम मेन डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे. फिर जो है पोल है हमारे सेलियन पोल मशीन पर, वो पोल किस तरह के होंगे वो सब देखेंगे. फिर वेरिएबल स्पीड जो है उसके बारे में जानेंगे. तो यहाँ पर जो मेन डायमेंशन है यानी कि डी और एल, वो फाइंड करने के लिए हमें आउटपुट इक्वेशन जो है उससे हम फाइंड करते हैं, और तो हमें मालूम. और डी और एल दोनों जो है वो हमारे मशीन की जो ओवरऑल साइज है उसकी वैल्यू है. डी जो है वो डायमीटर है मशीन का, और एल जो है वो लेंथ है हमारे रोटर की. तो उस जो लेंथ और डायमीटर है उससे हम ओवरऑल साइज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं.
फेलियर पोल मशीन के अंदर जो पोल होंगे वो दो टाइप्स के होंगे, एक तो हमारा राउंड पोल रहेगा और दूसरा जो है वो हमारा स्क्वेयर टाइप्स ऑफ पोल रहेगा, रेक्टेंगुलर टाइप्स ऑफ पोल रहेगा। और राउंड पोल और रेक्टेंगुलर टाइप दो टाइप्स के पोल होंगे। राउंड पोल जो है उसके अंदर जो बी बाई टो रेशियो है, बी जो है वो एक्चुअल में क्या है, हमारा पोल आर्क है, और टो जो है वो हमारी पोल पिच, यानी कि ये जो हमारा पोल है वो पोल से हमें जो आर्क मिलती है, यानी कि पोल की जो लेंथ है, सर्कुलर लेंथ, उस लेंथ और टो यानी कि हमारा पोल पिच, उन दोनों का रेशियो जो है वो 0.6 से लेकर 0.7 हम लेते हैं। और उसी तरह रेक्टेंगुलर पोल के अंदर जो पी बाई टू रेशियो है वो 1:5 लेंगे। अब ये जो वैल्यू है उस वैल्यू से हम डी और एल की वैल्यू डिफाइन करेंगे कि जो हमारा डी है वो और एल जो है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी। अब राउंड पोल जो है, राउंड पोल के अंदर जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसकी वैल्यू जो है वो हमारे रेक्टेंगुलर पोल जो है उससे वाइंडिंग की वैल्यू जो है वो कम होगी, यानी कि वाइंडिंग जो है वो रिड्यूस होगा, तो वो एक एडवांटेजेस हो सकता है। और दूसरा जो लेंथ ऑफ मीन टर्न है स्क्वायर पोल में, वो लेंथ ऑफ मीन टर्न रेक्टेंगुलर जो हमारा पोल होगा उससे कम होगी, वहां पर भी हम कॉपर को सेव कर सकते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग की कॉस्ट जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर सर्कुलर पोल जो है वो हम यूज करें। इसके बाद वेंटिलेशन जो है वो भी राउंड पोल के अंदर बेटर रहेगा। और मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो वो रेक्टेंगुलर पोल के अंदर वाइंडिंग में ज्यादा लगेगा राउंड पोल की जगह पर। तो ये सब जो एडवांटेजेस है वो हमारे रेक्टेंगुलर पोल की अगर देखा जाए रेक्टेंगुलर पोल ले, उसके अलावा जो राउंड पोल है उसमें एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो, और उसमें टू टाइप्स ऑफ पोल रहेंगे, एक बोल्टेड टाइप और दूसरा जो है वो डोविलेटेड टाइप पोल। हम अगर पेरिफेरल स्पीड की बात करें तो 15 मिली सेकंड मीटर पर सेकंड के लिए हम बोल्टेड पोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और डोविटेल कंस्ट्रक्शन के लिए 80 मिली मीटर पर सेकंड जो है वो पेरिफेरल स्पीड पर हम जो है वो पोल कंसीडर करते हैं। यानी कि ये दोनों जो वैल्यू है वो पेरिफेरल स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होगी। अब पेरिफेरल स्पीड क्या है एक्चुअल में, कि जो हमारे जो उसको हम डेनोट करते हैं पाई डी एन एस से, यानी कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो है किसी भी रोटर की, उस सिंक्रोनस स्पीड जो है रोटर की सिंक्रोनस स्पीड और उससे हमारा जो टोटल पेरिफेरी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पेरिफेरल स्पीड मिलेगी। यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर अगर रोटेट करता है, उसी रोटर को अगर हम चलाने लग जाए तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, उस डिस्टेंस के बेसिस पर हम जो है वो पेरिफेरल स्पीड जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि रोटर एक जगह पर ही रोटेशन करता है, अगर उस रोटर को हमने फ्रीली मूव कर दिया जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितने समय में, उस टाइम और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो हमें मिलेगा वो हमारी पेरिफेरल स्पीड रहेगी। तो उस पेरिफेरल स्पीड से हम जो है रोटर की राउंड पोल और रेक्टेंगुलर पोल जो है वो हम चूज करते हैं। Now we study about short circuit ratio. Short circuit ratio we can call as an SCR. Now what is short circuit ratio? Here first we study the short circuit ratio is equal to field current required to produce rated voltage on open circuit upon field current required to produce rated current on short circuit. So now what is the meaning of this? Here we see that in our figure there is an open circuit characteristics and short circuit characteristics. We see that now in open circuit test we give field current for produce rated voltage in open circuit. So in suppose we have an field current value, produce open circuit voltage in open circuit test, and field current required to produce short circuit current in short circuit test. So here we see the both characteristics. Now we take common value for field current
for open circuit and short circuit, and ratio of this is called SCR. So in figure we see that OF1, here we see that OF0, which is equal to a field current required to produce short circuit current, and OFS, which is a short circuit current, which is a required short circuit current, field current for short circuit. So both the value we here see that OF0 for getting the value of A and OFS, which is equal to B for getting the value of B, which means that OF1 current required to produce open circuit voltage at point A, and field current OFS required to produce short circuit current point B. So this OF0 upon OFS, which is our field current. Now OF0 is equal to CF0. From we see that in the figure, OF0, which is equal to CF0. Here we see that equal value both sides. Now same here, OFS is equal to BFS, OFS which is equal to BFS. Here is also square. So this value is also equal. It's also equal to AF0. So here we see that it's also equal to AF0. So यहाँ पर BF0, BFS जो है वो AFS के इक्वल है. उसी तरह ये सब स्क्वायर है, इसका मतलब OFS जो है वो भी इक्वल है. तो तीनों के तीनों जो है यहाँ पर इक्वल है. अब SSR की वैल्यू जो है, SCR की वैल्यू वो क्या है, OF0 अपॉन OFS, यानी फील्ड करंट शॉर्ट सर्किट में और फील्ड करंट ओपन सर्किट में और शॉर्ट सर्किट में. अब OF0 की जगह पर हम CF0 लिख सकते हैं. इसी तरह OFS की जगह पर BFS भी लिख सकते हैं, और जो है CFS0 अपॉन BFS की जगह पर AF0 भी लिख सकते हैं. तो ये वैल्यू लिखने के बाद हम देख सकते हैं कि CF0 अपॉन AF0, अब CF0 को हम जो है वो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 अपॉन AF0 अपॉन CF0 होगा. ये जो AF यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये लाइन AF0 की अपॉन CF0, यानी कि ये जो लाइन है CF0, तो ये एक्चुअल में हम देख सकते हैं कि ये जो है वो पर यूनिट वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट है F0A. यहाँ पर ये वोल्टेज है तो पर यूनिट वोल्टेज फॉर ओपन सर्किट टेस्ट है. और हमारा जो CF0 है, वो CF0 की वैल्यू हम देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट है कोरोस्पोंडिंग टू पर यूनिट वोल्टेज. तो इस पर यूनिट वोल्टेज पर हमें दो वैल्यू जो है, एक ओपन सर्किट वोल्टेज की और शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस करने पर जो वोल्टेज मिलता है उनकी वैल्यू मिलती है. यानी कि ये जो वैल्यू है वो हमारी रिएक्टेंस की वैल्यू है, क्योंकि V इज इक्वल टू वी टेक IR, विच मीन्स दैट R इज इक्वल टू V बाई I. तो यहाँ पर यूनिट वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट और पर यूनिट शॉर्ट सर्किट कोरोस्पोंडिंग टू पर यूनिट वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट. सो वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि हमें जो है वो रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी. तो XD इज इक्वल टू पर यूनिट वोल्टेज अपॉन पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट. सो SCR इज इक्वल टू 1 अपॉन XD, which means that SCR is reciprocal to XD. So जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो है, अगर उसकी वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे तो जो सिंक्रोनस सर्किट रेशियो है SCR जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और XD की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो SCR की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो नॉन सॉलिड पोल मशीन के अंदर जो SCR रेशियो है उसकी वैल्यू हम 1 से लेकर 1.5 तक कंसीडर करते हैं, और सॉलिड पोल अल्टरनेटर के अंदर वो 0.5 से 0.7 तक हम वैल्यू कंसीडर करते हैं. अब हम देखने वाले हैं कि जो SCR है उसकी इफेक्ट मशीन परफॉर्मेंस पर कितनी पड़ेगी. सो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो लो SCR अगर हम कंसीडर करते हैं तो हाई वैल्यू ऑफ XD हम लेंगे और लार्ज वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा.
और पुअर वोल्टेज रेगुलेशन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि SCR की वैल्यू अगर लोअर चूज की, उसका मतलब है कि जो XD की वैल्यू है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू हाई रहेगी। और सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू हाई रहने का मतलब है कि जो हमारा ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप होगा I into XD से, वो ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी हाई रहेगा। और वोल्टेज ड्रॉप हाई रहा, उसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेंडिंग एंड से लेकर रिसीविंग एंड तक का वोल्टेज का जो रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन हमें पुअर मिलेगा। उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन, अगर SCR की वैल्यू हम लो कंसीडर करते हैं, इसका मतलब हाई वैल्यू ऑफ XD होगा। अब हाई वैल्यू ऑफ XD में लो सिंक्रोनस पावर जनरेट होगा, क्योंकि रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है, इसका मतलब सिंक्रोनाइजिंग पावर जो है वो लो रहेगा। और सिंक्रोनाइजिंग पावर अगर लो रहेगा तो पैरेलल ऑपरेशन जो है वो डिफिकल्ट होगा हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है उसका। उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो लो वैल्यू ऑफ SCR का मतलब है जो हाई वैल्यू ऑफ XD। अब XD की वैल्यू यानी कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू हाई होगी, तो लो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो हम प्रोड्यूस होगा। यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू अगर हाई है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट करंट को हम लिमिट कर सकते हैं। बट शॉर्ट सर्किट करंट कैन बी लिमिटेड बाय मींस ऑफ लो वैल्यू ऑफ SCR, व्हिच मींस दैट जो अगर वोल्टेज रेगुलेशन और पैरेलल ऑपरेशन की बात करें तो SCR की वैल्यू जो है वो हमें हाई रखनी है, और शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो SCR की वैल्यू हमें लो कंसीडर करनी है। अब सेल्फ एक्साइटेशन की बात करें तो अल्टरनेटर फीडिंग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन शुड नॉट बी डिजाइन विद स्मॉल SCR as this would lead the large terminal voltage on open circuit due to large capacitance current. तो अगर SCR की वैल्यू हमने लार्ज ली, अगर स्मॉल ले ली, उसका मतलब है कि जो हमारा जो वोल्टेज होगा टर्मिनल वोल्टेज, वहां पर वो भी हमें लार्ज वैल्यू मिलेगी। तो हमें SCR की वैल्यू जो है यहाँ पर भी हमें हाई वैल्यू कंसीडर करनी है। यानी कि हाई स्टेबिलिटी लिमिट के लिए, लो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए और हाई शॉर्ट सर्किट करंट के लिए और लार्ज एयर गैप के लिए हमें जो है वो SCR की वैल्यू हाई कंसीडर करनी है। सो हमें जो है वो SCR की वैल्यू इस तरह से चूज करनी है कि हमें शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो भी लिमिट में मिले और वोल्टेज रेगुलेशन भी बेटर हो सके और पैरेलल ऑपरेशन भी सही से हो सके। तो इस तरह SCR जो है वो डिपेंडेंट रहेगा। यानी कि SCR क्या है, एक्चुअल में रेशियो है ओपन सर्किट में जो हम वोल्टेज, रिक्वायर्ड वोल्टेज जो प्रोड्यूस करते हैं ओपन सर्किट पे, वो प्रोड्यूस करने के लिए जो फील्ड करंट अप्लाई करेंगे वो डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट में जो शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जो फील्ड करंट अप्लाई करेंगे। तो यही हमने ग्राफ के अंदर देखा, OF0 और OF1 दोनों हम देख सकते हैं कि एक जो है वो OF0 हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा जो शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस करने के लिए जो फील्ड करंट था, उन दोनों का रेशियो हमने ले लिया। उस रेशियो से हमने AF0 अपॉन CF0 निकाला। यह AF0 क्या है एक्चुअल में, तो हम देख सकते हैं AF0 यहाँ पर वो पर यूनिट वोल्टेज है ओपन सर्किट का, और CF0 क्या है कि हम देख सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट करंट लाइन में CF0 क्या है कि जो पर यूनिट वोल्टेज है रिक्वायर्ड शॉर्ट सर्किट करंट का। यानी इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज अपॉन करंट यानी कि रिएक्टेंस। तो हमने उसी तरह रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि SCR जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा XD से। फिर हमने जो है वो SCR जो है वो कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में देखा, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन, शॉर्ट सर्किट करंट और सेल्फ एक्साइटेशन। तो यहाँ तक जो है वो हमने SCR के बारे में पूरा देख लिया। अब अगले लेक्चर के अंदर हम लेंथ ऑफ एयर गैप के बारे में जानेंगे और उसके नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो सिंक्रोनस मशीन में कैसे अफेक्ट करते हैं वो सब हम देखेंगे। थैंक यू।